اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ان الحمد للہ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال ربي ويرضى. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سامعین و حاضرین خطبہ عید الاضحیٰ، میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ آج اس نے ہم کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم دوگانہ نماز عید الاضحیٰ کی اس کے رب کے حضور پیش کر سکیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا تہوار ہم کیوں مناتے ہیں، اس پر آپ نے بارہا گفتگو شروع کی. ماہرین سماجیات جو سوشولوجسٹ ہیں، سماج شاستر کے جو ماہرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی فیسٹیول، کوئی بھی تہوار وہ کسی قوم کا، کسی سماج کا، کسی دھرم کا وہ آئینہ ہوتا ہے. اس سندربھ میں یا اس کنٹیکسٹ میں اگر ہم اپنے تہواروں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تہوار اصل میں کیا ہے. ہم کسی قوم کے تہوار کو دیکھتے ہیں کہ اس میں صرف ناچ گانے اور بازے ہوتے ہیں تو اس قوم کا آئینہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ہم کسی قوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ صرف شراب اور پارٹیوں کے ذریعے سے اپنے تہواروں کا سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس قوم کا آئینہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. لیکن جب ہم یہ امت مسلمہ کے تہوار کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس تہوار میں بھی وہ اپنے رب کے حضور دو گانا ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اور رب کے حضور ہمیشہ شکریہ سجدے شکر ادا کرتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری اسپرٹ کیا ہے، ہماری روح کیا ہے، اس قوم کا آئینہ کیا ہے، اس کا مرر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم یہ تہوار مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، صرف 2 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، جس نے کہا ہے کہ تمہارے لیے ان 2 رسولوں میں نمونہ ہے. دے آر آئیڈیل فار یو، وہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. ایک تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. دوسرے کہا کہ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم کی ذات میں بھی نمونہ ہے. ابراہیم کی ذات میں نمونہ کیا ہے؟ ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ بارہا کر چکے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں تقریریں سنی ہے، لیکن کیا ہم نے غور کیا ہے کہ ان کی زندگیوں کا نمونہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ بحیثیت بیٹے کے دیکھے ابراہیم کو کس طرح سے اپنے باپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں، بار بار منا رہے ہیں کہ تم ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو. ہذہ تماثیل التی انتم لها عاکفون، یہ تماثیل، یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، اس کو چھوڑ دو. لیکن بار بار باپ منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم باز نہیں آئے تو تم کو سنسار کر دوں گا. ابراہیم جاتے جاتے اپنے باپ سے کہتے ہیں لا استغفر لک ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، تمہارے لیے نجات کی دعا کروں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، لیکن یہی آزر دیکھیے، جب معاملہ نظریات کا آتا ہے، جب معاملہ آئیڈیاز کا آتا ہے، جب معاملہ اپنے مشن کو آگے بڑھانے کا آتا ہے، وہ اپنے باپ کی محبت کی کے دام میں نہیں آتے ہیں، بلکہ اس باپ کا جو باپ بت فروش بھی ہے، بت گر بھی ہے، وہ وہی باپ اور وہی بیٹا جو اس کی محبت کا اتنا قائل ہوتا ہے، وہی بت شکن ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اپنے نظریات سے سمجھوتا نہیں کرتا، اپنا جو یقین ہے، عقیدہ ہے، اس سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے. اور آج ہم کتنے آزر ہیں جن کے بت جو بت تراشے ہوئے ہیں اور ہم ان کے بتوں کے اس اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں. کتنے آج کے وقت کے آزر کو خوش کرنے کے لیے ہم کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ دیکھیں گے تو کس طرح سے بحیثیت باپ کے انہوں نے اسماعیل کی تربیت کی تھی، کس طرح سے انہوں نے اپنے بچے کو پالا پوسا تھا کہ جب خواب میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے تو بیٹے کے امتحان لینے کے لیے جب انہوں نے کہا تو کیا قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم، کہ جب دونوں باپ بیٹے اپنے آپ کو انہوں نے سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، انہوں نے اسلام لے آئے اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے نچھاور کر دیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا،
इब्राहिम तुमने ख्वाब का सच करते थे। और बेटा क्या कहता है जब बेटे से ख्वाब का तज़किरा करते हैं, कहता है बेटा या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, कि प्यारे बाबा जान जो कुछ अल्लाह का हुक्म दिया है, आप देखिए गौर कीजिए कुरान की जो अल्फाज हैं, वो जो वर्डिंग है वो क्या कह रही है। वो क्या इब्राहिम कह रहे हैं कि मैंने ख्वाब देखा है, बेटा कह रहा है जो हुक्म दिया गया है आपको। आप देखिए जो ख्वाब अंबिया का ख्वाब हुक्म के दर्जे में रखता है, इसकी फरासत, इसका तफाहुम, इसका इल्म उस बेटे को था जिसकी तरबियत इब्राहिम ने की थी। वो कहते हैं सतजिदुनी इफ़अल मा तुमर, पहले कहते हैं कि कर डालिए, फिर कहते हैं मा तुमर, जिसका हुक्म दिया गया है। इन अल्फाज की बलागत को भी देखिए, ये नहीं कह रहा है कुरान, इस्माइल ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हुक्म जो दिया गया है वो करिए, पहले कह रहे हैं इफ़अल, जो कुछ कर डालिए, मा तुमर, जो तो आपको हुक्म दिया गया है। फिर उसके बाद में सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह। ये इम्तिहान तो बहुत बड़ा है, एक इम्तिहान जिसको कुरान ने खुद बलाउन अज़ीम के नाम से बताया है कि बहुत बड़ा इम्तिहान है। कहा सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो तुम मुझे साबित कदम पाओगे। आज आप इस इब्राहिम के इस उसवा की रोशनी में हम अपना जायज़ा लें, हम अपने औलाद की तरबियत क्या इस नहज पर कर पा रहे हैं कि मौका पड़ने पर वो अपनी सलाहियतों को, अपने माल को, अपने वक्त को, अपनी जान को अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। हमें से हर एक चाहता है कि वो इस्माइल जैसा बेटा पैदा हो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस्माइल जैसा बेटा पैदा करने के लिए इब्राहिम जैसा बाप बनना पड़ता है। इस्माइल जैसा बेटा पैदा करने के लिए हाजरा जैसी माँ पैदा करना पड़ता है। यही माएँ जिनके गोदों में इस्लाम पलता था, यही गोदों में जिनके नूर से चश्मा होता था। आप देखिए वो माओ की गोदों को हमने खो दिया है, और इसी वजह से वो इस्माइल जैसे बच्चे हमारे पैदा नहीं हुए। इब्राहिम जैसा बच्चा जिसने इब्राहिम बार बार रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन की दुआ करते हैं बुढ़ापे में कि अल्लाह ताला मुझे सालिहीन का एक साले और नेककार बेटा दे। आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हम कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का क्या मकसद है, उसकी रूह क्या है, उसकी स्पिरिट क्या है, आप उसको जानते हैं। आप कुर्बानी जो हम करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी से हमको क्या मकसूद है, आपको अल्लाह ताला को कुर्बानी से ये मकसूद है, हमारा तक़वा मकसूद है। अल्लाह ताला ने बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारा खून, तुम्हारा गोश्त नहीं पहुँचता, लेकिन जो तुम्हारे दिलों का तक़वा है, किस जज्बे के साथ, किस अपने जज्बे के साथ और किस उसके साथ आप कुर्बानी कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला को ज़्यादा अहमियत देता है। कुरान में हाबिल और काबिल की कुर्बानियों का तज़किरा किया गया है, उसमें एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। बाद में कहा गया कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, ये कुर्बानी तो अल्लाह ताला मुत्तक़ियों से कबूल करता है। दूसरे लोगों से जो गैर मुत्तक़ी हैं, जिनके दिलों में दिखावा है, जो ये चाहते हैं कि हम हमारे गाँव में शोर हो कि फलाने इतने हज़ार का बकरा खरीदा है, या ये किया है, उसकी नमूद नुमाइश को हो जाती है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला मुत्तक़ियों से कबूल करता है। हम कुर्बानी के जो उसका है वो चाहता है कि हम उसके हुजूर, अल्लाह के हुजूर जिस तरह से कुर्बान करने के लिए जानवर को कुर्बान करते हैं, इसी तरह से आप देखिए कुर्बानी के लिए हम अच्छा जानवर कुर्बान करते हैं, अच्छा जानवर सेलेक्ट करते हैं, बाजार में जाकर के मोल भाव करते हैं, और जो अच्छा होता है वो कोशिश हमारी होती है कि ज़्यादा जितना अच्छा कुर्बानी का जानवर हमें मिल सके हम लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हम अपने अच्छे दिनों का, जिसको जवानी का दिन कहते हैं, जिसको सेहत के दिन कहते हैं, क्या हम उसको अल्लाह के लिए कुर्बान करने तैयार हैं? हम तो जानवर तो बहुत अच्छा ढूंढते हैं, लेकिन हमारा जो कीमती असासा है, हमारी जो कीमती उम्र है, हमारा जो कीमती वक्त है, उसको अल्लाह ताला के राह में कुर्बान करने के लिए हम कभी फिक्रमंद होते हैं? हम ये सोचते हैं कि किस तरह से जानवर को कोई ऐब ना हो, क्योंकि ऐबदार जानवर होगा तो अल्लाह ताला को कबूल नहीं होगा। लेकिन क्या हम अपने ऐबों को तलाश करते हैं ताकि उसको कुर्बान कर सकें? क्या हम अपनी अना को कुर्बान करते हैं? क्या अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हैं? क्या अपनी माता परस्ती को कुर्बान करते हैं? क्या हम जो दुनिया बहुत सारे बुत हमने तराश लिए हैं अपने दिलों में, अपने आस्तीनों में छुपा रखे हैं, क्या हम उन बुतों को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं? हम तो बहुत बेऐब जानवर तलाश करते हैं, अपने ऐबों को कब तलाश करेंगे? इसकी रूह, कुर्बानी की रूह को कब समझेंगे? आप तलाश करते हैं कि बहुत अच्छा जानवर हो, अल्लाह ताला कहता है कि जो सबसे अल्लाह ताला को पसंदीदा है कि वो कि तुम बिर को, तुम नेकी को पहुँच ही नहीं सकते जब तक कि तुम उसको कुर्बान न करो जिसको तुम बहुत अच्छा, बहुत मिम्मत हिब्बून, जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिससे तुम मोहब्बत करते हो।
आप देखिए कि ये कुर्बानी का फ़लसफ़ा या कुर्बानी की जो रूह है वो हमसे किस तरह से गायब हो गई है। आज दुनिया में बहुत वायवाला मचाया जाता है। ये कहा जाता है कि ये कुर्बानी करने से बेहतर है, ये माशियात के लिए या ये इकोनॉमिक्स के लिए या बिजनेस सिस्टम के लिए ये एक तरह से एक तबाहकुन मॉडल है, इसको नहीं चलना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि ये जो आज के बिजनेस टाइकून हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिवली इस्लाम को मुताला किया है, वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि दरअसल यही एक फेस्टिवल है जो तमाम अदियान में पाया जाता है। तमाम अदियान को मिला करके सिर्फ ईद उल अज़हा का ही एक ऐसा त्यौहार है जो बहुत ही इंक्लूसिव है, सब लोगों को शामिल करता है। आप देखिए इस्लाम के जो त्यौहार है उसकी एक रूह, उसकी एक स्पिरिट, उसका एक अहम पैगाम ये भी होता है कि आप अकेले ईद नहीं मनाएंगे। आप अपने त्यौहार में, अपनी खुशियों में सारे समाज के लोगों को, गरीब को और जो जिनके यहाँ वो वसाइल फराहम नहीं है, सबको खुशी के मौके पर शरीक करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि कुर्बानी के जानवर का एक हिस्सा आप खुद खाएंगे, एक हिस्सा रिश्तेदारों और अजीज़ों में तकसीम करेंगे और एक हिस्सा आप गरीबों और जो आप पास पड़ोस के जो लोग हैं जो इस बात की साथ नहीं रखते कि वो कुर्बानी कर सके, उनको अपनी खुशियों में शरीक करना है। ये कुर्बानी का जज्बा है, ये कुर्बानी की रूह है कि हम इसको अपने लिए करें। हम कुर्बानी को इस तौर पर समझ सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी हमारे लिए है हमेशा कुर्बानी का एक तमसील है, ये एक समझ लीजिए इस्तिआरा होता है कि हम इसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला से ये अहद करते हैं। ये तजदीद अहद का दिन है, ये हमको अपने वादे को याद करने का दिन है कि अल्लाह तबारक व तआला से जो हमने वादा किया था कि ये माल ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने जन्नत के बदले हमारी ये माल जान खरीद लिए हैं। इस तजदीद को अहद वफा को तजदीद करने का दिन है ये। हम इस बात का अहद करें कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने, अल्लाह ताला की मंशा के आगे, अल्लाह ताला की मर्जी के आगे हमसे जो कुछ भी मुतालबा किया जाएगा, जिस वक्त भी मुतालबा किया जाएगा, हम उसको अपनी राह में कुर्बान कर देंगे। मौजूदा हालात में आप देखें तो इस कुर्बानी की अहमियत को और हमारे उसवा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहमियत को हमारे लिए बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है। आज के जो हालात है उसमें हमसे किसी वक्त जिस तरह के मुतालबे हो सकते हैं, अपने औकात की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी, अपनी सलाहियतों की कुर्बानी और वक्त पड़ने पर अपनी जान की कुर्बानी पेश करना, ताकि अल्लाह के सामने हम सुरखरू हो सकें, अल्लाह की जो दीन है उसको हम पहुँचा सकें, अल्लाह के दीन की इताअत में अपने आप को सही तस्लीम खम कर दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये उसवा, ये इश्क इलाही जो अल्लाह तबारक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, वो एक निचोड़ है। हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी के निचोड़ आप देखेंगे तो सिर्फ वही है कि किस तरह से मोहब्बत इलाही में अपने आप को फना कर देना, किस तरह से अपने आप को अल्लाह की मर्ज़ी के आगे सरेंडर कर देना। इसीलिए कुरान ने कहा फलम्मा अस्लमा, और कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे मा काना यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा, इब्राहीम यहूदी और ईसाई नहीं था बल्कि वो मुस्लिम था। तौहीद का वो आला नमूना पेश किया था कि जिसको शायर ने कहा तौहीद तो ये है कि खुद हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ये इब्राहीम ने पूरे दो आलम से खफा होने का मोल जो लिया था वो अल्लाह तबारक तआला ने किया था। अपने घर वालों से को छोड़ा था, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा था, बादशाह वक्त नमरूद को चैलेंज किया था और फिर अपनी बीवी बच्चों को ले जाकर आप गया वादी में आबाद के थे। सारे किस्से, ये सारी चीज़ें तस्करे आपने बारहा सुने हैं, लेकिन इसकी रूह को, इसकी स्पिरिट को समझने की कोशिश कीजिए। वो ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने आप को सरेंडर कर दें, उसके दीन के लिए जब भी जिस चीज़ का मुतालबा हो हम अपने आप को लगा दें। यही इब्राहीमी रूह है, यही बस मस्जिद जो ईद उल अज़हा का पैगाम है। इसी कुर्बानी, इसी ये जज्बा अगर हमारे अंदर पैदा होता है तो ये समझिए कि हम अपने आप को जो कुर्बानी का जो कर रहे हैं, एक मजहर पेश कर रहे हैं, वो मजहर हमारा कबूल होता है। वरना सिर्फ ये एक मजहर ही है और इसकी रूह इसमें से गायब है। जिस तरह से रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली ने रही, और ये रोज़ा, ये कुर्बानी, हज सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुर्बानी की रूह को समझने की अल्लाह ताला तौफीक दे, और मौका पड़ने पर जो कुछ भी हमसे दीन के लिए मुतालबा किया जाए हम उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार रहें।